हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है कोडिंग पांडा यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर STLs बोले तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज। डू यू वांट टू बी अ बेटर C++ प्रोग्रामर? डू यू वांट टू excel in your competitive coding contest? If your answer is yes, this video is for you. आज के इस वीडियो में we will learn the in-depth concepts of C++ STLs। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो STLs provide you the predefined functionalities which helps you to deal with the data and perform the algorithmic technique on it very efficiently, and also helps you to reduce the time in writing the code, or you can say implementing the algorithm. I must repeat one thing, that in-depth knowledge of how to use STL is a must to have toolkit if you want to be a better C++ programmer. जैसे कि हम बात कर सकते हैं सर्चिंग की, सॉर्टिंग की एंड डिफरेंट डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक्स की, डेटा स्टोरेज की। ईच STLs behaves differently and provide you a unique way to deal with the data. So कब किस STL का यूज करना है is something that we are going to learn in this video. We will cover vectors, sets, maps, stacks, queues, dequeues and much more. We will know about the containers, different algorithms that can be performed on it, and the iterators through which we can access the data. अगर आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामर हो या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हो तो STL आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। So in the world of CP, it's not only you have to think the solution fast, you also have to implement it quickly. That is where STL will come to rescue you. So I hope अब आपको पता चल चुका होगा कि why STLs are so important in C++. So तैयार हो जाइए अपने C++ के जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। मैं एक्साइटेड हूँ, तो बिना किसी समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। वेक्टर के साथ शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं कि वेक्टर को हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, डेटा इसमें कैसे ऐड करेंगे, साइज लेंथ के साथ डील कैसे करना है और डेटा को हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं। अदर ऑपरेशंस लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग के बारे में भी देखेंगे। आई एम डायरेक्टली जंपिंग टू माई कंप्यूटर स्क्रीन। First thing first, how we can initialize the vector. So vector initialization can be done by vector followed by angular bracket and the data type that you want to use, and after that the name of the variable. मैंने यहाँ पे int define किया है। You can define a string, you can define a vector, anything that you want. Initialization तो vector का हो चुका है। अब how we can add the data. So before moving forward, like जब आप एक इंटीजर एरे डिफाइन करते हो तो वहाँ पे आपको साइज डिफाइन करना होता है, लाइक इंटीजर एरे ऑफ साइज 10, इंटीजर एरे ऑफ साइज 100, वट एवर समथिंग लाइक दैट। बट व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग वेक्टर ओवर द एरे कि यहाँ पे पहले तो आपको प्री डिफाइंड फंक्शनलिटीज़ मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको साइज भी प्री डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इट विल ऑटोमेटिकली डिफाइंड ऑन द गो, लाइक जैसे आप डेटा ऐड करोगे या डेटा रिमूव करोगे, इट विल डायनेमिकली डिफाइन द साइज ऑफ द वेक्टर। सो आगे जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि हाउ वी कैन ऐड द डेटा टू इट। So for that there is a method called pushback. So pushback operation इस पे perform होता है to add some data. So to get the size of the vector we can use vector.size and it will return us the size of the vector, and after that pretty simple that we will iterate from 0 से लेके size of the vector and we will print the every data which is present at that index. So vector of I will return you the data which is present at ith index of the vector. So I am running this program. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि size of the vector is 2 and the data which are present there is 5 and 10. तो ये तो बहुत सिंपल सा तरीका हो गया वेक्टर डेटा को प्रिंट करने का। सो आगे देखते हैं एक तरीका जो कि मैंने पहले बात कर रहा था आइटरेटर्स के बारे में। सो आइटरेटर्स विल बी यूज्ड अक्रॉस द STL, सारे कंटेनर्स में ये अवेलेबल है। सो बहुत ही ध्यान से देखिएगा दैट हाउ वी कैन डू इट। So we can define the iterators of type vector int. Second method will be using the iterators. So iterators कोई भी define करने का जो तरीका होता है, this is something like this, that you define that which type of iterator it is, and after followed by the two columns,
and iterators it will be there, so it will be of type vector int। तो जिस तरीके का आपका वेक्टर होगा उसी तरीके का ये डिफाइन किया जाएगा। सेम आप अगर मैप है तो मैप के लिए कर सकते हो, सेट के लिए कर सकते हो। सो दिस इज द वे वी कैन डिफाइन आइटरेटर। एंड आफ्टर दैट व्हाट आई डिड कि आई स्टार्टेड फ्रॉम वी डॉट बिगिन। सो अब क्या है कि स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर और नाम दिए गए हैं स्टार्टिंग और एंड के लिए। सो फॉर स्टार्टिंग ऑफ द कंटेनर इट इज डिनोटेड एज begin and end of container is denoted as end। So vector dot begin will say कि this is pointing to the first element of the vector, and vector dot end will say that it is pointing at one iterator after the last index। so ऐसा नहीं कि लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, लास्ट इंडेक्स के एक आगे कुछ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द वे यू डू इट एंड लेट मी रन द कोड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वापस से ये आइटरेटर के थ्रू वेक्टर को हमने प्रिंट किया है, बट दिस इज नॉट द वे दैट आई विल बी यूजिंग इट अक्रॉस द वीडियो। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी यूजिंग अ कीवर्ड कॉल्ड ऑटो। सो ऑटो कीवर्ड ऑटोमेटिकली डिफाइंस आफ्टर इनिशियलाइजेशन कि ये व्हाट शुड बी द डेटा टाइप ऑफ इट विल ऑटोमेटिकली असाइन द वैल्यू। so how we can use the auto keyword, let's do it again। so I am just copy and pasting the same code। I am using auto here, I am using auto 2, I can still use auto but I am using auto 2 it2। so यहाँ पे देख सकते हो आप कि हमारा वेक्टर प्रिंट हो चुका है। बात करते हैं कि ऑटो कीवर्ड ने कैसे अपना काम किया। सो यहाँ पे वेन एवर बी डिफाइंड ऑटो it2 इट वेटेड फॉर it2 टू गेट इनिशियलाइज्ड, और जैसे ही ये वेक्टर डॉट बिगिन से हम लोगों ने इसको इनिशियलाइज किया, इस ऑटो कीवर्ड ने ऑटोमेटिकली समझ लिया कि it2 का जो टाइप है वो एक वेक्टर इंट का आइटरेटर है। और बाकी उसके बाद तो सिंपल जो ऊपर का कोड है सेम कोड नीचे एग्जीक्यूट हो गया एंड वी हैव प्रिंटेड द एंटायर वेक्टर। ऑटो इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू द क्योंकि आइटरेटर्स के लिए ही इसको यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इट फॉर एनी डेटा टाइप। फॉर रीडेबिलिटी ऑफ द कोड आई विल नॉट सजेस्ट टू यूज ऑटो, बट जैसे ही आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करते हो, जैसे ही आप बात करते हो कि आपको क्विकली किसी सॉल्यूशन को सबमिट करना है, आपको क्विकली किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखना है, इन दैट केस ऑटो will be a better choice to use। so in this course throughout the video I will be using auto। अब आपको पता है कि बिहाइंड द सीन ऑटो कैसे काम कर रहा होगा। अगले तरीके के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि वेक्टर हमारा अगेन प्रिंट हो चुका है और इट गॉट प्रिंटेड यूजिंग दीज लाइन। इसको हम लोग बोलते हैं रेंज्ड बेस लूप। यहाँ पे वी आर iterating the vector, like you can just simply think that iteration of vector and it will iterate the whole vector and it will print the value which is there। यहाँ पे अगर आप ऑटो की बात करते हो कि यहाँ पे ऑटो क्या होगा, यहाँ पे ऑटो वाज आइटरेटर्स, बट यहाँ पे ऑटो जो है, यहाँ पे ऑटो है व्हाट एवर द टाइप वी आर डूइंग। यहाँ पे दिस इज इंटीजर। आई एम अगेन ट्राइंग टू प्रिंट इट अगेन। यहाँ पे एक इंटीजर है, तो ऑटो का यूज आप यहाँ पे भी कर सकते हो कि यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ही ये वैल्यू आई का इनिशियलाइज करोगे वैसे ही ऑटो अपना टाइप इंटीजर से मैप कर लेगा। आई विल टेक इट एज इंटीजर एज ऑफ नाउ, ठीक है। ऑटो यूज करना इज अ बेटर चॉइस। अब थोड़ा सा कोड छोटा कर लेते हैं। आई एम डिफाइनिंग अ फंक्शन कॉल्ड डिस्क्राइब वेक्टर। ओके, आफ्टर द साइज आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि कैपेसिटी ऑफ द वेक्टर। एक और मेथड है दैट इज कॉल्ड वी डॉट कैपेसिटी। तो ये क्या बताता है आपको कि ये कितना कैपेसिटी या कितना मेमोरी अभी यूटिलाइज कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि वेक्टर इज डायनेमिक इन साइज। एज सुन एज वी विल एक्सीड दैट कैपेसिटी द वेक्टर विल डबल इटसेल्फ। ये कैसे काम करता है कि सपोज करते हैं कि अभी हमारा कैपेसिटी 4 का है एंड यू हैव पुट द फिफ्थ एलिमेंट। फिफ्थ एलिमेंट को रखने के लिए इसके पास जगह नहीं है, तो व्हाट इट विल डू, इट विल एक्सपैंड इट्स साइज फ्रॉम 4 to 8, नॉट कि 4 से 1 आगे जाएगा 5। 4 to 8 कर लेता है। दैट इज हाउ द वेक्टर बिहेव्स। कैपेसिटी, हाउ वी कैन डिफाइन ऑफ द वेक्टर, द वी डॉट कैपेसिटी। Also I am adding in the describe vector functionality कि it will also define you that what is the capacity, ताकि आप थोड़ा सा विजुलाइज भी अच्छे से कर सको कि वेक्टर कैसे क्या हो रहा है, वेक्टर के अंदर क्या चल रहा है। तो इसके लिए
I am defining the capacity of vector is something. Okay, it will be v dot capacity. So यहाँ पे मैंने describe vector define कर दिया है. Describe vector what it will do, it will give us the size of the vector, it will give the capacity of the vector, it will give the like everything else which is required. So for printing the data of the vector, I have removed all the duplicate for loops and just एक loop को मैंने रखा है that I have defined in the last, so that I have kept it here. आपको अपने practice के लिए you can use any of these whatever you like. So after that what I will do, I will try to first of all, like after the initialization, I will try to describe the vector. So I am describing the vector v, then I will try to run it. So here if you will see कि साइज भी 0 है वेक्टर का एंड कैपेसिटी ऑफ वेक्टर इज ऑल्सो 0. ठीक है, तो अब जब मैं 5 लाइक व्हेन आई विल पुट 5 इन द वेक्टर, आफ्टर दैट लेट्स सी कि हाउ द वेक्टर लुक्स लाइक. So after adding 5, here you can see कि that size of the vector is 1 and the capacity of vector is also 1. ठीक है, 10 के बाद देखते हैं. तो size of the vector is 2 and the capacity of vector is also 2. ठीक है, एक एलिमेंट और ऐड करके देखते हैं कि क्या होता है. Again after adding 5, I have described the vector, and now what I will do, one simple mistake that I did, I have not passed the vector by reference, I have passed it by value. So what it will do, v dot capacity will always print the vector size, so that's not the good. The vector was getting copied. Now I passed the vector with the reference, so the actual vector will be passed. So now what I am doing, after adding 5, I am describing the vector. After that, after adding 10, and let's add more pushback, I am adding 15, and now I am trying to describe the vector. So now when I will try to describe the vector, let's see what will happen. So here if you will see, the size of the vector is 3 but the capacity of the vector is 4. Why the capacity is 4? The size of the vector was 0, like capacity of the vector was 0. Now जैसे ही एक डेटा आया, it became 1. After that दूसरा डेटा आते ही 1 into 2 2. जैसे ही तीसरा डेटा आया, it like from 2 it went up to 4. So 2 into 2 is 4. So size of the vector is 3 but the storage which this vector is using is 4. So that is what we define the capacity with. Now vector के basic functionalities हम जान चुके हैं, so let's deal with some advanced functionalities. So बात करते हैं कि how we can sort a vector. तो sorting कैसे कर सकते हैं vector का. तो sorting of vector can be done using sort. तो sort के syntax क्या होते हैं ये मैं बताता हूँ. सो हमारा वेक्टर पहले से सॉर्टेड है, तो आई विल ट्राई टू ऐड सम वैल्यूज. सो सॉर्टिंग ऑफ वेक्टर कैन बी डन समथिंग लाइक दिस कि यू हैव टू पास द फर्स्ट एंड लास्ट आइटरेट ऑफ द वेक्टर एंड इट विल डू द सॉर्टिंग फॉर यू. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको सॉर्टिंग एल्गोरिथम खुद से इम्प्लीमेंट करना होगा तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा. यू हैव टू राइट एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, बट STL की हेल्प से in just one line you got your sorted vector after adding just one line. So here you can see I have executed the program. So earlier the vector was in the order in which we placed the inputs or we like introduced the elements, but देख सकते हो कि after sorting हमारा जो एलिमेंट है वो सॉर्ट हो चुका है उसके वैल्यू के आधार पे. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दी सॉर्टिंग. तो सॉर्टिंग के बाद की बात करें तो होता है कि हाउ वी कैन यूज द सर्चिंग इन द वेक्टर, लाइक हाउ वी कैन सर्च एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द वेक्टर और नॉट. सो ये भी बहुत आसान है इफ़ यू वांट टू यूज सर्चिंग. सो सर्चिंग टेक्निक्स पता होंगे आपको, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च. सो लीनियर सर्च तो बहुत ही आसान है कि जस्ट आइटरेट थ्रू द वेक्टर एंड चेक दैट कि फ्रॉम 0 इंडेक्स से लेके i इंडेक्स तक आप चले जाओ वेक्टर में. अगर वो किसी भी i इंडेक्स पे नंबर उपलब्ध है, वी विल रिटर्न इट एज ट्रू, अदरवाइज वी विल से इट्स नॉट प्रेजेंट. सो टू नो द इंडेक्स ऑफ एनी नंबर इन द सॉर्टेड वेक्टर, व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज द बाइनरी सर्च ऑन द वेक्टर. क्योंकि अब वेक्टर सॉर्ट हो चुका है, वी कैन परफॉर्म द बाइनरी सर्च टू फाइंड द वैल्यू.
सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम आपने देखा कि लाइक द डिस्क्राइब फंक्शन विच आई यूज्ड बिफोर द सॉर्टिंग इज प्रिंटेड द वेक्टर इन द ऑर्डर इन विच वी हैव एडेड द नंबर्स। सो जैसे कि हम लोगों ने वेक्टर में पहले 5 इनपुट किया, फिर हम लोगों ने 10 डाला, फिर 15 डाला, फिर 3 8 2 इन द सेम मैनर इट printed the vector. But after sorting you can see the data is in the increasing order. Like there is other way, like if we want to sort it in decreasing order, we can also do it using r begin and r end. So this is called bidirectional iterator. So using this we can print or like sort the vector in reverse order. So here if you will see, the vector is printed in reverse order. I'm just commenting it out. The next topic is finding. So like जब एलिमेंट को फाइंड करना तो यू कैन डू इट आइदर लीनियरली, और जैसे कि बाइनरी सर्च के बारे में आप जानते होंगे। सो लीनियर करने का तो बहुत ही आसान तरीका है कि लाइक सपोज वी हैव टू फाइंड एंड वी व्हाट वी विल डू, वी विल गो फ्रॉम 0 टू वेक्टर ऑफ साइज, वी विल चेक दैट ओके इफ इट इज इक्वल्स टू द फाइंड, लेट्स अपडेट द इंडेक्स एंड ब्रेक द लूप एंड बात करें आफ्टर दैट वी विल प्रिंट द इंडेक्स। इफ इंडेक्स इज -1 वी विल से कि ओके वी हैव नॉट फाइंड द वैल्यू, इफ इंडेक्स इज समथिंग एल्स देन -1 इट मीन्स वी हैव फाउंड द वैल्यू, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि 3 के लिए इसने इंडेक्स 1 को प्रिंट कर दिया, तो जैसे कि वेक्टर में 0 बेस इंडेक्सिंग होता है तो इंडेक्स 1 पे 3 मौजूद है, हमारा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब सिंपल हम बात करें कि अगर हम इस वेक्टर में खोजना चाहते हैं 4 एंड व्हेन वी विल प्रिंट इट, सो इट विल से कि -1, इट मीन्स कि ये खोज नहीं पाया 4 को हमारे वेक्टर में हमारा 4 है ही नहीं, ठीक है। सो बट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस विल बी order of n, right? So the time complexity of this will be, so I'm writing time complexity, so time complexity of this will be order of n. But अगर इसको हम फर्दर ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो फिर बाइनरी सर्च हमारे काम में आएगा, क्योंकि एरे सॉर्टेड है, वी कैन लेवरेज दी बाइनरी सर्च। अब ये जो हमारा लीनियर सर्च है, इट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन आइदर ऑफ दी सॉर्टेड एरे, और सॉर्टेड अगर वेक्टर ना भी हो फिर भी हमारा काम चल जाएगा। बट बाइनरी सर्च के लिए हम लोग सॉर्टेड वेक्टर ही रखेंगे। सो लाइक वी विल सॉर्ट द वेक्टर फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वी विल परफॉर्म द बाइनरी सर्च। सो बाइनरी सर्च के लिए जो हमारे एचटीएल में प्री डिफाइंड मेथड है वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं। सो हमारा जो बाइनरी सर्च, प्री डिफाइंड बाइनरी सर्च, प्री बिल्ड बाइनरी सर्च जो हमारे एचटीएल के साथ आता है वो इस तरीके से काम करता है कि यू हैव टू गिव द इनिशियल इटरेटर फ्रॉम वेयर till where it have to find the value. So we have to enter v dot begin, after that v dot end will कि यहाँ तक आपको सर्च करना है, and what I have to search is it to find, तो I have passed the to find in the find function. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि iterator okay when it will not able to find the value it will return you the vector dot end, मतलब कि लास्ट एलिमेंट से एक आगे का जो इटरेटर होगा वो रिटर्न करेगा अगर ये एलिमेंट फाइंड करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। व्हाट आई डिड कि आई सिंपली सेड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इटरेटर दैट वी फाउंड एंड वेक्टर डॉट बिगिन, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, दैट इज व्हाट आवर इंडेक्स इज। सो सपोज करते हैं कि ये 4 के लिए बात करते हैं, 4 के लिए -1 इट प्रिंटेड बिकॉज इट वाज नॉट एबल टू फाइंड इट। लेट्स डू इट फॉर 3, लेट मी टेल यू कि how it works. So for 3, so for 3 it printed 1, right? So for 3 it printed 1. How it printed 1? The iterator was pointing out to this 3 and the v was begin was pointing out to this. So difference of this will give you the index of the actual value. So this is how you can leverage your STL to find the number in just one line of code. So जस्ट लाइक फाइंड यू कैन यूज अदर बाइनरी सर्च ऑपरेशंस आल्सो, लाइक अगर आपको लोअर बाउंड निकालना है, अपर बाउंड निकालना है, यू कैन डू द सेम। फाइंड के जगह पे आपको बस लोअर बाउंड लिखना है, फाइंड के जगह पे बस आपको अपर बाउंड लिखना है, एंड इट विल परफॉर्म द लॉजिक फॉर यू, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड लॉजिक फॉर यू। सो ये आपका होमवर्क है कि हाउ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड वर्क्स ऑन द वेक्टर। नाउ फ्यू मोर ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो एक साथ ही बात कर लेते हैं। So for the readability of the code, I have moved the searching and sorting related code at one place. So I have moved these here, sorting and searching related codes.
So like moving forward, what we can do, like what are the other operations that we can perform in the vector? The first one will be the removing the one element from the last of the vector. So for that we can use vector dot pop, and like let me do it and describe the vector. Here if we will see, the earlier the vector was, just commenting it out. So earlier the vector was something like this, but after adding a pop it removed 2 from the last. So that is what the vector dot pop does. And after that, if we want to describe the vector from the, after clearing all the element, like v dot clear or the clear function can be performed on any of the STLs, any of the container. Like if you want to erase everything from the map, you can use map dot clear. From the set you can use map dot set dot clear. So clear can be performed on anything to remove every single element from the container. सो दैट्स ऑल अबाउट वेक्टर्स। आप वेक्टर्स के बारे में और जानना चाहते हो तो आप सी प्लस प्लस डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज पेयर। सो पेयर दो वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर करके रखता है। देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे कि ज़रूरत होता है कि दो वैल्यूज़ आपस में कपल्ड हो, तो वहाँ पे हम पेयर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में आप समझ सकते हो कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स में आपको एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को स्टोर करना होता है। सो वहाँ पे पेयर आपके हेल्प में आएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन अ पेयर। पेयर इज डिफाइंड एज पेयर, द फर्स्ट डेटा टाइप, द सेकेंड डेटा टाइप एंड द नेम ऑफ द पेयर। एंड आई हैव यूज द इनलाइन इनिशियलाइजेशन ऑफ द पेयर, सो आई हैव डिफाइंड 1 and 2 एज द वैल्यू। सो अगर आपको एलिमेंट लाइक there are two elements, so how we can access those? So that can be accessed using first and second. Dot first and dot second can be used for accessing the element. पता चल चुका है यहाँ पे। So now let's do a very simple question. तो क्वेश्चन क्या है कि I will providing you multiple coordinates in any random order and you have to sort the coordinates on the basis of x axis. So question simple है। So let's directly jump to code it. So question is very simple कि आपको ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x एंड y, we just have to print it on basis of x. So यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट आई थिंक बहुत क्लियर है। सो लेट्स जंप कि हम C++ में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, सो लेट्स जंप टू द कोडिंग पार्ट। सो हियर इफ यू विल कम कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो हमारे पास पेयर विल बी द बेस्ट वे टू स्टोर द कोऑर्डिनेट्स। So we will be using a vector of pair and coordinate will be of type integers. So I will be using a pair of int comma int. So now let's suppose कि हमारे पास n coordinates दिए रहेंगे। So that I am supposing कि n coordinates दिए रहेंगे। So I am the user, I will be providing the n coordinates. So each coordinate will say x and y and we have to put it in the vector as a pair. So for let's take the input int I equals to 0, I less than n, I plus plus. Let's say कि there will be x and there will be one y. I will be taking input x, I will be taking input y. Then what I will do, I will push it in our vector. सो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। मैंने एक्स एंड वाई इनपुट लिया है एंड आई हैव पुस्ड इट आवर वेक्टर। सो हमारा वेक्टर मिल चुका है जिसमें कि हमारे पास डेटा होंगे। सो मैं इनपुट भी ले लेता हूँ, लाइक सपोज आई एम प्रोवाइडिंग 5 डेटा। So there is 1 2, there is 5 7, there is 3 5, there is 2. So यहाँ पे मैंने एक इनपुट भी ले लिया है 5 कोऑर्डिनेट्स और यहाँ पे इनपुट हमारे वेक्टर में स्टोर हो चुका है। नाउ द सिंपल थिंग दैट विल कम इन योर माइंड कि लेट्स सॉर्ट द वेक्टर। सो लेट्स सॉर्ट द वेक्टर एंड सी व्हाट हैपेंस। यू ऑलरेडी नो द सॉर्टिंग। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक प्रिंट वेक्टर नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें कि मैंने सॉर्टेड वेक्टर को पास कर दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या जादू हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा वेक्टर है वो प्रिंट हो चुका है एक्स एक्सिस के आधार पे।
सॉर्टेड ऑर्डर में। द फर्स्ट इज 1, देन इट्स 2, देन इट्स 5, देन इट्स 7। सो वाई कोऑर्डिनेट को रिस्पेक्ट ना करके एक्स के आधार पे ये वेक्टर सॉर्ट हो चुका है। सो बाय डिफॉल्ट इफ यू आर डिफाइनिंग अ वेक्टर ऑफ पेयर एंड यू विल run a sort function, what it will do, it will sort the array on the basis of first element. So जैसा कि हम लोगों ने देखा कि x axis के आधार पे how can be sort, we just have to use sort function। sort function में हम लोगों ने वेक्टर पास किया, वेक्टर डॉट बिगिन से वेक्टर डॉट एंड, और जब हमने वेक्टर को प्रिंट करके देखा तो इट वाज ऑलरेडी सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ x एक्सिस। तो ये होता कैसे है कि जब सॉर्ट फंक्शन बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को सॉर्ट करता है। अगर आप वेक्टर का पेयर इसको पास कर रहे हो तो इट विल सॉर्ट द वेक्टर इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो कि हमारे केस में एक्स एक्सिस था, तो ये सॉर्ट कर दिया है। सो लाइक फर्दर इफ यू वांट टू सॉर्ट इट ऑन द बेसिस ऑफ वाई एक्सिस, देयर इज अ न्यू थिंग कॉल्ड कंपैरेटर्स विल कम टू द एक्शन। सो व्हाट आर द कंपैरेटर्स? तो कंपैरेटर फंक्शंस आर दोज फंक्शन विच वी पास इन सॉर्ट एंड इट विल हेल्प द सॉर्ट फंक्शन टू डिसाइड कि किसका वेटेज ज़्यादा है, किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है। सो दैट इज व्हाट द कंपैरेटर फंक्शन बिल्ड हेल्प द सॉर्ट फंक्शन टू डिसाइड। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, लेट्स डू इट। आई एम मेकिंग a comparator function. The return type of comparator function is boolean, so I am writing a bool. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आई हैव डिफाइंड a comparator function. What it will do, it will do कि a डॉट सेकेंड, लाइक जो पहला एलिमेंट है उसका सेकेंड जो है यानी y एक्सिस विल बी लेस देन y एक्सिस ऑफ b, लाइक जो दूसरा पेयर होगा दैट विल बी प्लेस्ड आफ्टर द a। बट यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर कुछ हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, लाइक सपोज ऐसा चाहते हैं, ऐसा कोई दो पॉइंट हो जिसमें कि दोनों का वाई एक्सिस सेम है, इन दैट केस वी नीड टू डू इट ऑन बेसिस ऑफ एक्स एक्सिस। सो वो भी हम कर सकते हैं। लाइक सपोज हम चाहते हैं कि जब दोनों का वाई एक्सिस सेम हो, एक्स एक्सिस के आधार पे सॉर्ट हो जाए, तो व्हाट वी हैव टू डू कि लाइक वी कैन डू इफ़ ए डॉट सेकेंड इक्वल्स बी डॉट सेकेंड। तो अगर मानते चलते हैं कि दोनों का वाई एक्सिस बराबर है, तो व्हाट वी विल डू, ए डॉट फर्स्ट लेस देन ए डॉट सेकेंड। सो अब ये जो लाइन हमने एडिशनल लाइन ऐड की है कि जब ए डॉट सेकेंड इक्वल्स बी डॉट सेकेंड होगा, इन दैट केस जो एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे मैं एक कंपैरेटर फंक्शन डिफाइन करता हूँ जिसमें कि मैं दो पेयर पास कर रहा हूँ ए एंड बी। सो हम लोग को क्या करना है कि सपोज ए डॉट सेकेंड जो कि हमारा वाई एक्सिस के बराबर होगा, तो ए डॉट सेकेंड शुड बी लेस देन p डॉट सेकेंड, राइट। वी वांट इट सॉर्टेड ऑन बेसिस ऑफ y एक्सिस। यहाँ पे y एक्सिस के आधार पे सॉर्ट हो जाएगा। बट व्हाट इफ वी वांट टू ऐड सम एडिशनल थिंग कि अगर दोनों को y एक्सिस बराबर है, लाइक सपोज ऐसा हो सकता है कि दो ऐसे पॉइंट्स हो जिनको y एक्सिस बराबर हो, इन दैट केस एक्स एक्सिस के आधार पे सॉर्ट करो। लाइक जिसका एक्स एक्सिस छोटा है वो पहले आना चाहिए, जिसका एक्स एक्सिस बड़ा है वो बाद में आना चाहिए। सो दैट वी कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस हियर कि अगर ए डॉट सेकेंड जो है इक्वल्स है बी डॉट सेकेंड के, मतलब ये दोनों बराबर है आपस में, तब क्या रिटर्न करना है कि ए डॉट फर्स्ट जो है इट शुड बी लेस देन बी डॉट फर्स्ट। तो ये क्या करेगा कि अगर वाई एक्सिस बराबर है तो एक्सिस के आधार पे सॉर्ट करेगा, अदरवाइज वाई एक्सिस को प्रायोरिटी देगा। सो लेट्स टेक अ लुक। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सॉर्ट फंक्शन में कंपैरेटर फंक्शन को पास कर दिया, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अब हमारा वेक्टर क्या प्रिंट होगा। ठीक है, लेट मी ऐड अ लाइन सी आउट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि y एक्सिस के आधार पे हमारा जो एलिमेंट है वो सॉर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे 2, आफ्टर 2 इट्स 4, आफ्टर 4 इट्स 5, आफ्टर 5 इट्स 7 और आफ्टर दैट इट्स 8। सो हमारा ऐसा वैल्यू था ही कि पहले से ही सॉर्टेड था ये y एक्सिस के आधार पे। तो लेट्स टूकेल इट अ लिटिल बिट, आई विल मेक इट 1, आई विल ऑल्सो मेक इट 1। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों 1 जो है पहले आ चुका है, और दोनों के जब 1 एंड 1 बराबर है, एक्स एक्सिस कंपेयर हुआ है और एक्स जिसका कम है वो पहले आया, मतलब एक्स 3 का कम है तो 3 केम बिफोर 9 1। दैट इज व्हाट इट हैपन। सो लेट्स डू इट, लाइक आई एम मेकिंग इट 13, नाउ आई ट्राई टू बिल्ड इट। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 9 पहले आ चुका है 13 से, बिकॉज 9 इज स्मॉलर देन 13। तो पहले तो वाई एक्सिस के आधार पे सॉर्ट कर रहा है, बट अगर वाई एक्सिस इक्वल है, इन दैट केस इट विल सॉर्ट ऑन बेसिस ऑफ एक्स एक्सिस। सो आई होप आपको कंपैरेटर फंक्शन क्लियर हो गया होगा कैसे काम करता है। तो डिफरेंट तरीके से इस कंपैरेटर फंक्शन का हम लोग यूज मल्टीपल जगहों पे करेंगे।
सो मेक श्योर कि आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें इस टॉपिक्स पे, एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। सो वी हैव कवर्ड वेक्टर्स, पेयर्स एंड कंपैरेटर फंक्शंस। सो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मैप्स। सो मैप एक कंटेनर है जो कि हमारा डेटा की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करता है। सो हाउ कैन वी इनिशियलाइज मैप? लेट्स सी। सो वी कैन इनिशियलाइज मैप यूजिंग मैप the first data type and then second data type. So I am trying to create a map which will store roll number and student name. So I'm trying to make a int comma string map. I will name it as register. So reg stands for register. I'm saying now how can I add data? It's very simple. We can say that roll number 1 is someone called Amit. So it will store map registration 1 with Amit. How can we define the length of the map? So length of the map can be defined by map.size. So dot size function is universal. You can use it on any of your container. Initially like आप map का size आपकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप आइटरेट करना ज़्यादा प्रेफर करोगे एज कम्पेयर टू साइज या लेंथ निकालने के। सो दैट डजंट मेक सेंस, आई एम रिमूविंग इट। प्रिंटिंग और एक्सेसिंग द डेटा इज़ वेरी इजी, लाइक फॉर इफ़ यू वांट टू प्रिंट द मैप। सो पहले जैसा कि मैंने बताया कि रेंज बेस्ड लूप आप यूज कर सकते हो। ऑटो, सो व्हाट इट विल डू, ऑटो यहाँ पे पेयर का रूप लेगा। पेयर कैसा हमारा है, फर्स्ट इंटीजर है और दूसरा स्ट्रिंग है। सो दैट इज व्हाट आई एम प्रिंटिंग। सो हमारा मैप यहाँ पे प्रिंट कर सकता है, लाइक वी कैन डू इट थ्रू दिस। सो आई एम ट्राइंग टू रन द कोड। सो मैंने प्रिंट मैप फंक्शन को एक अलग से डिफाइन कर दिया वाइड टाइप का, ताकि हमारे लिए आसानी हो डिफरेंट प्लेसेस पे मैप को प्रिंट करना, बार बार ये फॉर लूप रन ना करना पड़े। सो आई एम जस्ट डूइंग अ थिंग, प्रिंट मैप, लेट्स मेक इट जेनरिक and pass by reference. Again running the program. So done. अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कंटेनर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं। तो मैप्स आर द एसोसिएटिव कंटेनर्स। सो इसमें क्या होता है कि आप डिपेंड नहीं करता है कि किस ऑर्डर में आप वैल्यू को पुट कर रहे हो, इट विल अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ की। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 3 वैल्यू पुट किया है, अंसज, अमित एंड पांडा, एंड यहाँ पे जो रोल नंबर्स डिफाइंस है अलग अलग है। जब आप इस मैप को प्रिंट करोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली सॉर्ट इट ऑन बेसिस ऑफ की, एंड जो प्रिंट होगा वो पहले प्रिंट होगा अमित, आफ्टर दैट पांडा एंड आफ्टर दैट अंसज। सो लेट्स रन द प्रोग्राम। डन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो प्रिंट हो चुका है। नाउ हाउ कैन बी रिमूव एनी की फ्रॉम द मैप? सो फॉर दैट वी कैन यूज इरेज। Suppose we want to erase 10. So after removing 10, let's print the map again. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रोल नंबर 10 था वो रिमूव हो चुका है। तो दिस इज द थिंग इन द मैप दैट यू कैन डू। आप की डाल सकते हो, की को डिलीट कर सकते हो, प्रिंट करने का तरीका ये है। नाउ हाउ वी कैन फाइंड समथिंग इन मैप? सो दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। वेक्टर में जैसे आपने फाइंड किया था कि फाइंड वी डॉट बिगिन कोमा वी डॉट एंड, और जो वैल्यू आपको फाइंड करना था जो आपने दे दिया था, और जब वो एलिमेंट फाइंड नहीं कर पाया था, वेक्टर का जो फाइंड मेथड होता है, इट रिटर्न यू वेक्टर डॉट एंड। वेक्टर डॉट एंड रिटर्न करने का मतलब है कि वो डेटा जो है मौजूद नहीं है वेक्टर में। सिमिलर मैप के केस में भी होता है। लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। सो वी कैन फाइंड ऑन बेसिस ऑफ की। सो लेट्स से कि वी वांट टू फाइंड 3। सो यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैंने सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि व्हेन आई डिड फाइंड मैप डॉट फाइंड 3 एंड इट्स नॉट इक्वल टू मैप डॉट एंड, इट मीन्स कि की प्रेजेंट है। सेम इन केस ऑफ वेक्टर कि अगर मैप का लास्ट आइटरेटर नहीं रिटर्न करा, इट मीन्स कि यहाँ पे वो की मौजूद है, अदरवाइज की इज नॉट प्रेजेंट। सो यहाँ पे हम लोगों को देखा कि 3 तो प्रेजेंट है। सो यहाँ पे फाइंड टू फाइंड, लेट्स replace it with to find. So to find was present, so it printed key is present, otherwise it will say p is not present. So let's check that if 10 is present or not. 10 is not present because it was present earlier, but we have removed it using the map.erase. So that is why 10 is not present. So if you will try to find it, it will say no, that number is not present in our map. These are the things that you can do with the map or
बहुत ही यूजफुल कंटेनर है ये। यू विल यूज इट मोर फ्रिक्वेंट वाइल सॉल्विंग द डीएसए प्रॉब्लम्स। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि मैप्स में हाउ वी कैन पुट द डेटा, हाउ वी कैन प्रिंट द मैप, हाउ वी कैन फेच द डेटा एंड हाउ वी कैन फाइंड द डेटा। इसके अलावा भी एक दो तरीका और है जो कि नॉट सजेस्टेड, बट आप अगर फाइंड करने के लिए आप ये भी कर सकते हो। लाइक सपोज व्हाट विल हैपन if I will try to print map 10 here, like if I will try to print cout reg 10, so what will happen? The key is not present. So what do you think what should happen? The key is not present in the register. Will this program will give any type of error और कुछ रन टाइम एरर, कुछ कंपाइलेशन एरर, और क्या होगा? मैप व्हाट इट डज कि अगर कोई की है, आप उस की को डिफाइन नहीं करते हो और उस की को एक्सेस करना चाहते हो, तो रियल टाइम में ये मैप उस की को क्रिएट कर लेता है विथ अ डमी वैल्यू। सो बाय डिफॉल्ट अगर इंट कॉमा इंट है तो बाय डिफॉल्ट इट विल इनिशियलाइज द वैल्यू विथ 0। स्ट्रिंग के केस में देखते हैं क्या होगा। सो हियर इफ यू विल सी इट हैज प्रिंटेड समथिंग बट इट्स नॉट देयर, राइट? इट हैज प्रिंटेड अ null string. Null string means something like this. It has considered 10 as like this. So this is what it initialized the 10 bit and यहाँ पे ये print हो चुका है। को visualize करना है, so let's create another map with int and when I will try to print map of कुछ भी 5, सो ये 0 प्रिंट करेगा। ये भी एक तरीका है कि आप डायरेक्ट की को एक्सेस कर सकते हो, आप उस वैल्यू को ले सकते हो और अगर इंट का मैप है तो आप चेक कर सकते हो यार ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब कि ये मौजूद नहीं है हमारे मैप में। तो ये करने का एक तरीका है मैप ऑफ इंट आप विदाउट यूजिंग फाइंड। इफ़ यू वांट टू चेक कि अगर हमारा कोई इंटीजर जो कि 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो अगर मैप ऑफ 5 हम लोगों ने पहले से इनिशियलाइज नहीं भी किया था, बट इफ़ यू विल ट्राई टू print int, by default it will print 0. Same in case of string, it will print a empty string. But the drawback of using this कि ये अब क्या करेगा कि हमारे मैप का साइज अब 1 हो चुका है, क्योंकि मैप ऑफ 5 बिट ट्राई टू फाइंड एंड ये क्या किया कि ये की का एक पेयर हमारे मैप में अब आ चुका है, मतलब इस की के क्रॉस 0 हमारे मैप में आ चुका है, तो मैप का साइज 1 से बढ़ चुका है। तो मैप डॉट फाइंड जो है, मैप डॉट फाइंड विल नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ योर मैप, बट अगर आप डायरेक्टली एक्सेस करते हो किसी की को और की अर्जेंट नहीं है, इट विल इंक्रीज द साइज ऑफ मैप बाई 1। सो लाइक दैट्स ऑल फॉर मैप। मैप में आप लोगों ने देखा कि कैसे हाउ यू कैन ऐड द डेटा, हाउ यू कैन इरेज इट, हाउ यू कैन प्रिंट द मैप और हाउ यू कैन फाइंड एनी वैल्यू इन द मैप। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे इंसर्शन, डिलीशन और फाइंड तीनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग इन होता है, और जब आप मैप को पूरा प्रिंट करना चाहते हो तो यू कैन डू इट यूजिंग आइटरेटर्स इन ऑर्डर ऑफ एन टाइम। अब बात करते हैं अगले टाइप ऑफ मैप की, दैट इज अनऑर्डर मैप। अनऑर्डर मैप में वैल्यूज आर रैंडमली असाइन। सो जब आप इसको प्रिंट करोगे तो किसी सॉर्टेड मैनर में आपको की के सॉर्टेड मैनर में वैल्यू प्रिंट करके नहीं देगा। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग अनऑर्डर मैप ओवर द ऑर्डर मैप? जो जिस मैप की अभी हम लोगों ने बात की, दैट इज ऑर्डर मैप। अनऑर्डर मैप में आप एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन इज ऑर्डर ऑफ 1। अब अनऑर्डर मैप इंटरनली हैश टेबल का यूज करता है, तो कोलिजन की वजह से कभी कभी ये दिक्कत आ सकती है कि आपका एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाइक वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होकर ऑर्डर ऑफ n चला जाए। बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका एक हैश फंक्शन प्री डिफाइंड, बहुत अच्छा हैश फंक्शन डिफाइंड है, इन दैट केस यू कैन से कि एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन इज ऑर्डर ऑफ 1। तो अनऑर्डर मैप के लिए मैंने क्या चेंजेस किए हैं ओवर द ऑर्डर मैप? सो मैंने जस्ट एक अनऑर्डर मैप डिफाइन करने के लिए अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप लिखा है, और आई हैव डिफाइंड द सेम काइंड ऑफ मैप। आई एम सेम डिफाइनिंग द रजिस्टर अगेन, जिसमें कि मैं रोल नंबर के अगेंस्ट किसी भी स्टूडेंट का नाम रखूँगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हो कि लेट्स प्रिंट द मैप, सो अगर आप इसको प्रिंट करोगे, ऑर्डर मैप में क्या था कि ये की के आधार पे सॉर्टेड था, बट अनऑर्डर मैप में ऐसा नहीं होगा। और मैंने और क्या काम किया है कि एक प्रिंट मैप डिफाइन किया है सेम नाम से, बट द सिग्नेचर ऑफ फंक्शन इज डिफरेंट। ओके, सो फंक्शन इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ थ्री थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द रिटर्न टाइम, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड व्हाट इज द पैरामीटर दैट इट इज टेकिंग।
एक सिग्नेचर का 2 फंक्शन आप नहीं बना सकते हो, बट फंक्शन ओवरलोड कर सकते हो आप अगर सिग्नेचर डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि फंक्शन का सिग्नेचर नाम सेम है, रिटर्न टाइप सेम है, बट क्योंकि पैरामीटर अलग है, इट इज़ अलाउड इन C++ टू ओवरलोड अ फंक्शन। दैट आई डिड। सो मैं यहाँ पे अब पास कर रहा हूँ सेम फंक्शन आई एम यूजिंग, आई एम जस्ट passing the another map now. Now what will happen? Let's see. So I am running the program. So यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज प्रिंटेड इन रैंडम ऑर्डर। पहले पांडा प्रिंट हुआ है, फिर अमित प्रिंट हुआ है, फिर अंशज प्रिंट हुआ है, एंड आफ्टर रिमूविंग 10 हियर यू कैन सी कि पहले 3 पांडा फिर अमित प्रिंट हुआ है और की इज नॉट प्रेजेंट। जो हम की फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं 10 दैट इज नॉट प्रेजेंट, और लाइक सपोज अब हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं 3 को। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम अगेन। So key is present. So overall the code and the logic will be same for ordered and unordered map. The only difference is कि average time complexity of insertion and deletion and accessing the data order of 1 हो जाता है unordered map के केस में, and ordered map के केस में this is login. So most of the place आपका order map काम में आ जाएगा, like most of the places I can say like 90 to 95% of the cases ऑर्डर मैप विल बी इनफ, बट इन फ्यू केसेस आपको अनऑर्डर मैप यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सिंपल मैप के साथ अनऑर्डर मैप की भी जानकारी हो कि अनऑर्डर मैप को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट द मैप्स। लेट्स मूव टू व्हाट्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेट। तो सेट की बात करते हैं तो सेट के यूनिक फीचर क्या है कि सेट में द वैल्यू दैट यू विल पुट विल बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। पहला चीज़ कि सॉर्टेड ऑर्डर में ये वैल्यू कंटेन करेगा। दूसरा चीज़ कि यूनिक वैल्यूज़ होंगे। लाइक सेट में अगर पहले से कोई वैल्यू प्रेजेंट है और सेम वैल्यू आप दोबारा डालते हो तो वो वैल्यू इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स सी कि सेट कैसे काम करता है, हाउ वी कैन इनिशियलाइज एंड ऐड डेटा एंड लाइक अदर ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म द सेट। सो लेट्स सी। So we can define set as set another bracket the data type, and then we can say set name of the set. So that is I am saying S. Now we can add a data in set using insert. So यहाँ पे आप देख सकते हो सेट को मैंने इनिशियलाइज किया है, फिर इसमें आई ट्राई टू पुट द वैल्यू 5, 10, 3, 2 एंड अगेन 5। सो मैंने जैसा कि बताया कि अगर आप सेट में दोबारा से कोई वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करते हो जो कि सेट में पहले से मौजूद है, इट विल नॉट ऐड दैट न्यू वैल्यू। सारे एलिमेंट्स यूनिक होंगे सेट के। नाउ लेट्स ट्राई टू प्रिंट द सेट। सो फॉर प्रिंटिंग द सेट आई हैव अगेन क्रिएटेड अ न्यू फंक्शन, वाइड फंक्शन, दैट इज नेम ऑफ प्रिंट सेट। इसमें जब मैं सेट को पास कर रहा हूँ और दिस विल जस्ट सिंपली प्रिंट द सेट फॉर मी। सो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड इट। आफ्टर बिल्डिंग यू कैन सी कि यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो चुका है 2, 3, 5, 10। 5 आपने 2 बार डाला, लास्ट वाला 5 इग्नोर हो गया। आफ्टर दैट जो वैल्यू आपने किसी भी मैनर में डाला, वैल्यू गॉट सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो दैट इज डन। नाउ हाउ वी कैन रिमूव एनी डेटा? फॉर रिमूविंग द डेटा देर इज 2 वे, आइदर वी कैन डू इट थ्रू आइटरेटर और वी कैन डू इट थ्रू द नॉर्मल वैल्यू। ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग, एस डॉट इरेज, like suppose I want to erase 5 from the set. Now if I will print the set, so initially the value was like 2, 3, 5 and 10। अगर आप 5 रिमूव कर देते हो तो यहाँ पर देख सकते हो कि नया सेट हमारा प्रिंट हो चुका है 2, 3 एंड 10। तो हम लोगों ने देखा कि इरेज कैसे कर सकते हैं सेट से। लाइक सेट से इरेज करने का और भी कुछ तरीके हैं, लाइक थ्रू आइटरेटर्स। लाइक अगर आपको आइटरेटर पता है तो उस आइटरेटर को भी आप इरेज कर सकते हो, लाइक एस डॉट इरेज s dot begin. So what it will do, it will remove the first element of the set. So like यहाँ पे आपने देख लिया कि सेट में से कैसे किसी वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। सेट में से डेटा रिमूव करने के और भी तरीके हैं, लाइक अगर कोई आइटरेटर अगर आप पास करते हो जो आप रिमूव करना चाहते हो, दैट विल आल्सो हेल्प टू रिमूव द वैल्यू फ्रॉम द सेट। सो जैसे कि कैसे मैं बोलना चाहता हूँ, लाइक सपोज इफ यू वांट टू रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट, सो व्हाट वी कैन डू, एस डॉट इरेज एस डॉट begin, और आफ्टर दैट लेट्स प्रिंट द सेट। सो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा सेट प्रिंट हो चुका है 3 एंड 10, जो कि फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करने के बाद का बचा हुआ सेट है। सो सिमिलर टू दैट आप कोई भी आइटरेटर पास कर सकते हो, अगर आपको पता है वो आइटरेटर तो दैट विल बी रिमूव फ्रॉम द सेट। नाउ अगर किसी वैल्यू को फाइंड करना है तो सेम थिंग दैट वी डिड इन द मैप।
सेम थिंग यहाँ पे यूज होगा। तो लेट मी कॉपी पेस्ट द सेम कोड। तो यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू फाइंड 2.5, सो इन 3 and 10 टू फाइंड लाइक 5 इज नॉट देयर, तो इट शुड रिटर्न दैट वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन सेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। आगे की बात करते हैं कि अगर हम रिमूव करना चाहें, लाइक सपोज इफ यू वांट टू फाइंड 3 एंड लेट्स चेक इट, इट विल से कि वैल्यू इज प्रेजेंट इन द सेट। तो सिमिलर टू दैट आफ्टर इरेज लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन हमारे हर कंटेनर्स में उपलब्ध है। लाइक अगर आप मैप में हर कुछ सारे की वैल्यू पेयर को डिलीट करना चाहते हो, यू कैन जस्ट यूज मैप डॉट क्लियर। सिमिलर टू दैट यू कैन यूज इन द सेट। सो अगर आप यहाँ पे सेट डॉट क्लियर करते हो, so it will clear all the value from the set. So now let's try to see out s dot size. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि आफ्टर क्लियरिंग द सेट द साइज ऑफ द सेट इज 0, मतलब कि हमारा साइज सेट का 0 है, कोई भी एलिमेंट हमारे सेट में प्रेजेंट नहीं है। सो इफ यू वांट टू इंटायरली डिलीट ऑल एलिमेंट यू कैन यूज क्लियर। So you can use clear on set, you can use clear on maps, you can use clear on multi-sets, you can use clear on unorder map. So हर जगह पे आप clear का यूज कर सकते हो। So that's all about the set. आपने देख लिया कि एक सेट में how we can put like what is the unique character of set, कैसे हम वैल्यू को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, how we can erase the value, how we can print the set, and कैसे हम सेट को completely clear कर सकते हैं। Like similar to set जो टॉपिक नेक्स्ट है दैट इज मल्टी सेट। तो मल्टी सेट के प्रॉपर्टीज की बात करें तो मल्टी सेट अलाउज यू द मल्टीपल वैल्यू टू स्टोर इन द सेट। सो ओनली डिफरेंस सेट और मल्टी सेट में ये है कि सेट में आपको जो वैल्यू यूनिक होंगे, मल्टी सेट में यू कैन हैव मल्टीपल वैल्यू प्रेजेंट। लाइक जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने ये सेट को, आई एम जस्ट डूइंग मल्टी सेट। तो चलिए मल्टी सेट को देखते हैं। तो मल्टी सेट के लिए बस इसी प्रोग्राम को मैंने थोड़ा सा एडिट किया है कि मल्टी सेट आई हैव डिफाइंड समथिंग लाइक मल्टी सेट एंगुलर ब्रैकेट इंट एंड एस, एंड अगेन हेयर आई हैव जस्ट डिफाइन अ न्यू प्रिंट सेट फंक्शन जिसमें जो पैरामीटर है दैट वी आर पासिंग एज ए मल्टी सेट। बस आई एम नॉट चेंज्ड एनीथिंग एल्स इन द प्रोग्राम। नाउ आगे आप देख सकते हो कि इंसर्ट भी मैंने सेम चीज़ यूज़ किया है। प्रिंट सेट यहाँ पे हमारे पास ओवरलोडेड फंक्शन है, तो दैट न्यू प्रिंट सेट विल बी यूज्ड एंड इरेज एंड everything is same as it was before. Now I'm trying to run the program. ठीक है, तो यहाँ पे आप बस ओनली डिफरेंस क्या देख सकते हो कि यहाँ पे जो 5 था 5 जो था, तो 5 जो है हमारे पास यहाँ पे 2 5 है। 5 का जो सेट में सिर्फ एक 5, क्योंकि वहाँ पे यूनिक वैल्यूज ही हो सकते हैं, यहाँ पे 2 5 मौजूद हैं क्योंकि हम लोगों ने 2 5 को पुट किया था। अब बात करते हैं इरेज फंक्शन की। इरेज फंक्शन, हाउ इरेज फंक्शन बिहेव्स डिफरेंटली इन सेट्स एंड मल्टी सेट्स। सो सेट में क्या है कि अगर आप इरेज फंक्शन किसी वैल्यू पे पुट करते हो और वो वैल्यू पहले से मौजूद है तो इट विल रिमूव दैट इंस्टेंस ऑफ द वैल्यू। बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि जब मैंने एस डॉट इरेज 5 डाला तो इसने दोनों इंस्टेंसेज ऑफ 5 को रिमूव कर दिया। तो दैट इज व्हाट मल्टी सेट डू कि अगर आप इसमें किसी की को, किसी वैल्यू को इरेज करना चाहते हो तो दैट विल इरेज ऑल द इंस्टेंसेज ऑफ दैट वैल्यू। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि 5 का दोनों इंस्टेंस डिलीट हो चुका है एंड आफ्टर रिमूविंग 5 द एलिमेंट इज 2 3 एंड 10। आगे की बात करते हैं कि अगर हम 5 को रिमूव करने के बाद मैंने प्रिंट किया, आफ्टर दैट आई ट्राई टू रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट। सिमिलर, फर्स्ट एलिमेंट जो यहाँ पे था 2 गॉट रिमूव्ड एंड 2 फाइंड यहाँ पे आ चुका है 3 यहाँ पे वैल्यू मौजूद है। सो इट हैज प्रिंटेड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द सेट। आफ्टर दैट सेम थिंग वी कैन यूज क्लियर and we can use the size of the set. So that's all about multi-set. Multi-set का आप यूज तब कर सकते हो जब आपको एक ऐसे कंटेंट की जरूरत हो कि जो कि आपका वैल्यू सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करे, बट वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज आपको स्टोर करने की जरूरत पड़ सकती है। इन दैट केस यू कैन यूज मल्टी-सेट, अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केस आप नॉर्मल सेट का यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेट का एक और वेरिएंट, अनऑर्डर्ड सेट। अनऑर्डर सेट आप रेयरली ही यूज कर रहे होंगे। अनऑर्डर सेट व्हाट इट डज कि आपका इंसर्शन और इरेज जो है दैट इट डू इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम। दैट इज द ओनली बेनिफिट दैट इट प्रोवाइड ओवर द नॉर्मल सेट और मल्टी सेट
कि एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एनी वैल्यू इज ऑर्डर ऑफ 1, बट वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें भी बढ़ सकता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर सेट। अनदर सेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बस मैंने एक छोटा सा लाइन अगेन ऐड किया है, मैंने मल्टी सेट को कन्वर्ट कर दिया है अनदर सेट में, और सेम एंगुलर ब्रैकेट लगा के मैंने एक इंटीजर डिफाइन किया है, सेट डाला है, और यहाँ पे मैं इंसर्शन, डिलीशन और एनी अदर लाइन्स आई हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग। बस व्हाट डिड आई चेंज कि यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन को अगेन एक नया प्रिंट फंक्शन डिफाइन किया है जो कि अनऑर्डर सेट लेगा और हमारे सेट को प्रिंट करेगा। लेट मी डिफाइन यू कि क्या कैरेक्टरिस्टिक और क्या यूनिक फीचर के साथ आता है अनऑर्डर सेट। सो अनऑर्डर सेट बाय डिफॉल्ट इट यूजेज हैश टेबल बिहाइंड द सीन। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो इरेज एंड इंसर्ट करने का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाता है। इसमें भी आपको डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि ये भी एक सेट ही है, बस अनऑर्डर्ड सेट है। तो ये भी यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, जैसे मल्टी सेट में होता है वैसे यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। बट द वैल्यू विच इट विल स्टोर द वैल्यू इज इन रैंडम ऑर्डर। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करके। आई एम रनिंग द प्रोग्राम। So after running the program here you can see the program return 2, 3, 10 and 5। like set को जो हमने वैल्यू डाला था और रैंडम ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट हो चुका है 2, 3, 10 एंड आफ्टर दैट 5। सो अगर आप सेट की बात करते हो तो 5 शुड बी बिफोर 10, बट अनऑर्डर सेट में क्योंकि वैल्यू रैंडम है कहीं भी रह सकता है, बट वैल्यूज आर यूनिक। 5 मैंने इंसर्ट किया था, ओनली 1 5 इज देयर, मतलब कि जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको इसने रिमूव कर दिया है। आफ्टर रिमूविंग द एलिमेंट 5 आई हैव रिमूव्ड, आप देख सकते हो कि इसने वैल्यू को फिर से लाइक जो पहले सेट था आफ्टर दैट उस सेट को इसने प्रिंट कर दिया है। ये भी रैंडम ऑर्डर में होगा। यहाँ पे 2, 3, 10 सॉर्टेड दिख रहा है, बट अदर केसेज में ये नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे भी रैंडम ऑर्डर में ये प्रिंट कर रहा है। एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हो कि हाउ वी कैन इरेज द बिगिनिंग ऑफ द सेट सिमिलर टू द मल्टी सेट एंड सिमिलर टू द नॉर्मल सेट। Find value is also similar, clear is also similar। so this is how we can deal with the unordered set। तो सेट में बस इतना ही। सेट में आज आपने देखा कि कैसे हम नॉर्मल सेट को यूज कर सकते हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। आफ्टर दैट आपने देखा मल्टी सेट के बारे में, एंड इन लास्ट आपने देखा अनऑर्डर्ड सेट के बारे में। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आप 90% केसेस में यूज कर रहे होंगे और नॉर्मल सेट का यूज कर रहे होंगे। आफ्टर दैट रेयरली ही आप मल्टी सेट और अनऑर्डर सेट का यूज कर रहे होंगे, बट दीज आर द कंसेप्ट जो कि जानने आपके अहम है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको इसकी यूज करने की जरूरत पड़ जाए। अब तक हम लोगों ने देख लिया वेक्टर्स, पेयर्स, कंपैरेटिव फंक्शंस, मैप्स और सेट्स के बारे में। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टैक। स्टैक के बारे में लाइक व्हाट इज स्टैक। तो स्टैक इज अ डेटा टाइप, और यू कैन से इन आवर केस, क्योंकि अभी हम STL पढ़ रहे हैं, डेटा टाइप के बारे में अच्छे से जानेंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग एरे एंड पॉइंटर्स। सो हम देखेंगे कैसे एक पॉइंटर और एरे का यूज़ करके एक स्टैक को स्क्रैच से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए आप मान के चल सकते हो कि वी कैन डिफाइन अ स्टैक एज अ कंटेनर इन विच वी कैन ऐड और रिमूव डेटा फ्रॉम द सेम एंड, एंड उस एंड को हम लोग टॉप के नाम से जानते हैं। इफ द डेफिनेशन इज नॉट क्लियर, लेट्स सी कि कैसे हम स्टैक के साथ डील करते हैं, तो आपको एक क्लियर होगा स्टैक का कॉन्सेप्ट। सो लेट्स मूव टुवर्ड लाइक हाउ वी कैन इनिशियलाइज दिस स्टैक। So similar to the other ones, stack can be initialized as stack followed by angular bracket, and in that angular bracket we can provide the data type and then we can name whatever we want। So यहाँ पे मैंने एक define कर दिया है stack s। Now the next thing is to determine the size or length of the stack। So similar to the other ones, यहाँ पे भी एक s.size defined है, like you can define a stack.size and you can get the size of the स्टैक इन ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट s.size का आप जनरली यूज नहीं कर रहे होंगे। बाकी जगह पे हम लोगों ने पार्टिकुलरली यूज किया है साइजेस का, बट s.size इज नॉट लाइक stack.size इज नॉट दैट ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज थिंग। सो बहुत कम ऐसा टाइम आएगा जब आपको साइज या लेंथ जानने की ज़रूरत पड़ेगी स्टैक की, बट लेट्स डिफाइन इट एज समथिंग लाइक s.size। एंड सो नेक्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू ऐड दैट एक इसमें एक मेथड है कॉल्ड empty, like stack.empty। so what it will do, it will return you that either the stack is empty or not।
इस मेथड का फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे होंगे ये जानने के लिए कि क्या स्टैक में हमारा एक भी एलिमेंट मौजूद है या मौजूद नहीं है। सो वी कैन यूज s.empty टू नो दैट इफ स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक सबसे पहले जब हमने स्टैक इनिशियलाइज किया था वहाँ पे मैंने लिखा कि अगर इफ s.empty देन प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी, अदरवाइज प्रिंट स्टैक इज नॉट एम्प्टी। सो शुरुआत में अगर बात करें हम लाइन नंबर 10 की, तो यहाँ पे हमारा स्टैक एम्प्टी है क्योंकि वी हैव नॉट एंटर्ड और वी हैव नॉट पुश्ड एनी वैल्यू इन दी स्टैक। सो यहाँ पे हमारा स्टैक एम्प्टी है। यहीं पे अगर हम बात करें कि आफ्टर पुशिंग 3 and 5 हमारा स्टैक अब एम्प्टी नहीं रहा, तो यहाँ पे इफ यू विल सी द फर्स्ट लाइन इट प्रिंटेड स्टैक इज एम्प्टी, देन स्टैक इज नॉट एम्प्टी एंड द साइज ऑफ द स्टैक यू कैन सी एज 2। सो आई होप यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि स्टैक डॉट एम्प्टी क्या रिटर्न करता है, स्टैक डॉट साइज क्या रिटर्न करता है एंड किसका ज़्यादा महत्व है, स्टैक डॉट एम्प्टी का और या स्टैक डॉट साइज का। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक कि प्रिंटिंग और एक्सेसिंग द डेटा ऑफ द स्टैक। सो बाकी केसेज में वेक्टर के केस में हमने क्या किया कि वी जस्ट आइटरेटेड द वेक्टर एंड प्रिंटेड ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। मैप के केस में भी हम लोगों ने सिमिलर किया, स्टैक के केस में भी हम लोगों ने सिमिलर किया, बट स्टैक में वी कांट डू द सेम। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि स्टैक में हमारे पास बस दो ही चीज़ें होती है, पहला एक कंटेनर जिसमें डेटा मौजूद है और दूसरा स्टैक का टॉप, मतलब कि टॉप पे कौन से डेटा प्रेजेंट है, दैट्स ऑल। सो अगर आपको स्टैक के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो एक एक करके आपको एलिमेंट को स्टैक से बाहर निकालना होगा। सो बाहर निकालने के लिए क्या तरीका है? स्टैक के बाहर निकालने का तरीका है इस डॉट पॉप। सो व्हाट इट विल डू, इट विल पॉप द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। देखते हैं यहाँ पे। सो बिफोर रिमूविंग द डेटा, हाउ वी कैन एक्सेस द टॉप एलिमेंट? टू एक्सेस द टॉप एलिमेंट वी कैन यूज इस डॉट टॉप। सो हमारे केस में टॉप एलिमेंट क्या है? पहले 3 गया है, फिर 5 गया है, तो हमारे केस में 5 पहले निकलेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट जो हमने इंटर किया है 5 को किया है, तो दैट विल बी पॉप्ड आउट फर्स्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट आई डिड कि टॉप एलिमेंट निकालने के लिए मैंने इस डॉट टॉप को प्रिंट कर दिया, फिर मैंने एक एलिमेंट को पॉप किया है यहाँ पे। आफ्टर पॉपिंग दैट एलिमेंट अगेन आई ट्राई टू प्रिंट कि हमारा जो स्टैक है वो क्या है। हमारा स्टैक पहले था 3 5, 3 बेस पे, उसके ऊपर से 5, हम लोगों ने 5 को हटा दिया, उसके बाद बच गया सिर्फ 3। दैट इज हाउ वी कैन गेट द डेटा ऑन द टॉप एंड देन वी कैन रिमूव द डेटा। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि हाउ वी कैन प्रिंट द स्टैक। जो स्टैक हमारा प्रिंट होगा वो लीफो ऑर्डर में प्रिंट होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जिस एलिमेंट को आपने लास्ट में डाला था वो एलिमेंट पहले प्रिंट होगा व्हेन यू विल ट्राई टू प्रिंट द स्टैक। लेट्स सी हाउ वी कैन प्रिंट अ स्टैक। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया दैट इज कॉल्ड प्रिंट स्टैक, जो कि हमारा स्टैक का एक कॉपी ले रहा है। यहाँ पे मैंने बाय रेफरेंस पास नहीं किया, बाय वैल्यू पास किया, सो दैट कि हमारा जो ये करंट स्टैक है वो इनएक्ट रहे। मैंने स्टैक को बाय वैल्यू पास कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन स्टैक आर कैसे प्रिंट किया मैंने। सबसे पहले मैंने चेक किया कि जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तब तक वी हैव टू कीप प्रिंटिंग द टॉप एलिमेंट। यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या था? 3 एंड आफ्टर दैट 5, तो पहले प्रिंट हो गया हमारा 5 एंड लास्ट हमारा प्रिंट हो गया 3। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 and 5 गॉट प्रिंटेड एंड सिमिलर टू दैट आगे जो है टॉप एलिमेंट एंड आफ्टर पॉपिंग जो नेक्स्ट टॉप एलिमेंट है वो प्रिंट हुआ है। सो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा कि स्टैक के साथ हम डील कैसे करते हैं, हाउ वी कैन पुट द डेटा इनटू इट, कैसे हम स्टैक को प्रिंट कर सकते हैं, इस डॉट एम्प्टी का कितना यूजफुलनेस है, हाउ वी कैन लिवरेज द स्टैक डॉट एम्प्टी प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं क्यूज के बारे में। सो द बेसिक प्रिंसिपल दैट इट फॉलोज इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जिस एलिमेंट को आप पहले क्यू में डालोगे वह एलिमेंट क्यू से पहले निकलेगा। हम क्यूज के बारे में भी एरे में देखेंगे, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द क्यू यूजिंग वन एरे और वेक्टर एंड 2 pointers। द 1 pointer इज फॉर दैट विल बी पॉइंटिंग एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, जो कि हमारा क्यू डॉट फ्रंट को रिटर्न करेगा, मतलब कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे क्यू के फ्रंट पे है, जो कि निकलना वेन एवर समवन्स ट्राई टू पॉप द एलिमेंट द फर्स्ट एलिमेंट विल गो। सो एक फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा होगा और एक लास्ट ऑफ द क्यू को पॉइंट आउट कर रहा होगा, ताकि कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो उसमें ऐड कर सके। सो इसका बेसिक इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। अभी के लिए हम HTML पे देखते हैं कि हाउ वी कैन लिवरेज द
queue predefined library. So initialization is similar to the other ones like queue followed by angular bracket, data type and variable name. How we can add the data? Queue dot push, we can use push method for. आप देख सकते हो कि मैंने डेटा 3 वैल्यूज मैंने क्यू में पुश करी है. द फर्स्ट इज 4, 10 एंड 6. ना साइज लेंथ को इग्नोर करते हैं. आप स्टैक एंड क्यू में आपको साइज और लेंथ की ज़रूरत खास पड़ेगी नहीं, तो आई एम इग्नोरिंग इट एज ऑफ नाउ. अब हाउ वी कैन एक्सेस द डेटा. अभी हमने देखा स्टैक में कि हाउ वी कैन एक्सेस द डेटा, कि हम लोग के पास बस टॉप डेटा का एक्सेसिबिलिटी. इन सिमिलर इन क्यू आपके पास बस फ्रंट डेटा का एक्सेसिबिलिटी है. अगर आपको क्यू को भी प्रिंट करना है तो सिमिलर काम करना होगा. पहले फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करो, बाहर निकालो. सेकेंड एलिमेंट को प्रिंट करो, बाहर निकाल दो. मतलब नया एलिमेंट को आपको फ्रंट पे लाते रहना होगा. सिमिलर टू दी स्टैक में बस टॉप पे था, लास्ट एलिमेंट से आप कर रहे थे. क्यू में यू विल बी डूइंग द सेम फ्रॉम दी फ्रंट. ठीक है, तो एक्सेस डेटा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फ्रंट. क्यू डॉट फ्रंट. सो क्यू डॉट फ्रंट के माध्यम से आप जान सकते हो कि विच इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, लाइक जो कि हमारे क्यू के फ्रंट पे है वो डेटा ये रिटर्न कर देगा. तो हमारे केस में क्या था, 4 को हमने सबसे पहले डाला था, तो 4 विल बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आवर क्यू. आगे बढ़ते हैं कि डेटा को रिमूव कैसे कर सकते हैं. हाउ वी कैन रिमूव द डेटा. तो सिमिलर मेथड हम यूज़ कर सकते हैं क्यू डॉट पॉप का. क्यू डॉट पॉप विल रिमूव द डेटा फ्रॉम द क्यू. So now if I will try to run the same program with after popping one element, let's run the program. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉप करने के बाद हमारा क्योंकि 4 बाहर निकल चुका है क्यू से, हमारे पास 10 जो है हमारे क्यू के फ्रंट पे है, सो वो 10 प्रिंट हो गया. अब देखते हैं कि हाउ वी कैन प्रिंट द इंटायर क्यू. क्यू में भी हमारे पास एक मेथड है कॉल्ड क्यू डॉट एम्प्टी विच विल टेल अस दैट आइदर क्यू इज एम्प्टी और नॉट. मतलब कोई डेटा या कोई एलिमेंट हमारे क्यू में प्रेजेंट है या नहीं है, ये कैसे जान सकते हैं हम? क्यू डॉट एम्प्टी के थ्रू. ठीक है, सो लेट्स प्रिंट द इंटायर क्यू. सो आई एम अगेन डिफाइनिंग अ फंक्शन. यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक प्रिंट क्यू नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया है जो कि एक क्यू को एज ए लाइक कॉपी ऑफ अ क्यू ले रहा है. द क्यू विच यू विल पास विल गेट कॉपी टू द न्यू वेरिएबल अगेन क्यू. सो बाय रेफरेंस मैंने पास नहीं किया है ताकि जो ओरिजिनल क्यू है इनएक्ट रहे. हेयर इफ यू विल सी द एलिमेंट्स ऑफ द क्यू हाउ है वी हैव प्रिंटेड. हमने चेक किया कि जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक पहले एलिमेंट को प्रिंट करते रहो. सो हमारे केस में पहले हमने 4 को डाला था, फिर 10 को, फिर 6 को डाला था. सो अब आप देख सकते हो कि जब हमने बार बार इसको सेम चीज़ को चेक किया कि क्यू एम्प्टी नहीं है, लेट्स प्रिंट द फ्रंट में प्रिंट हो गया 4, आफ्टर दैट फॉलोड बाई 10 एंड फॉलोड बाई 6. दिस इज द क्यू. दैट इज ऑल अबाउट द क्यू में हमने देखा कि हाउ वी कैन पुट द डेटा, हाउ वी कैन पॉप द डेटा, फर्स्ट एलिमेंट को हाउ वी कैन फेच, एंड द लास्ट थिंग दैट कि पूरे क्यू को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं और क्यू को ट्रैवर्स करने का तरीका क्या है. दैट्स ऑल अबाउट द क्यूज. अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डी क्यूज के बारे में. सो डी क्यू को आप एक मिक्सचर ऑफ स्टैक एंड क्यू मान के चल सकते हो. व्हाट इज द यूनिक फीचर दैट डी क्यू प्रोवाइड्स, कि आप इसमें जो चाहे वो कर सकते हो. लाइक आप आगे पुश कर सकते हो, आप आगे पॉप कर सकते हो, आप पीछे पुश कर सकते हो, आप पीछे पॉप कर सकते हो. मतलब पुश बैक, पुश फ्रंट बोथ इट अलाउ, पॉप बैक, पॉप फ्रंट बोथ इट अलाउज. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट आप इसमें डालना चाहते हो आप आगे भी पुट कर सकते हो और आप पीछे भी पुट कर सकते हो. सिमिलर इन केस अगर आप रिमूव करना चाहो तो आगे से भी कर सकते हो रिमूव, एंड यू कैन डू द सेम फ्रॉम द बिहाइंड. सो देखते हैं DQ के बारे में. हाउ वी कैन इनिशियलाइज द DQ. सिमिलर टू द स्टैक एंड क्यूज वी कैन डिफाइन इट एज DQ फॉलोड बाय एंगुलर ब्रैकेट. आप एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में अपना डेटा टाइप दोगे, किस टाइप के आप DQ चाहिए आपको, एंड देन यू कैन पुट द वेरिएबल नेम वॉट एवर यू वॉन्ट. लाइक नाउ हाउ यू कैन ऐड डेटा इन DQ. सो यू कैन डू आइदर पुश बैक और पुश फ्रंट. सो लेट्स सी कि कैसे करेंगे. यहाँ पे मैंने 4-5 एलिमेंट पुश करने की कोशिश की है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने 5 को पुश किया तो हमारा जो DQ है कुछ ऐसा दिखेगा 5. एंड आफ्टर दैट मैंने फिर से पुश बैक किया है तो 5 के बाद 6 इंटर होगा. सो द आवर DQ विल लुक समथिंग लाइक 5 एंड फॉलोड बाई 6. अब मैंने क्या किया है, पुश फ्रंट. अब ये
शुरुआत में एक एलिमेंट को डालेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा डी क्यू बन जाएगा 4 5 6 एंड सिमिलर टू दैट पुश फ्रंट 7 तो हमारा जो डी क्यू बन जाएगा 7 4 5 6। फिर हमने एक एलिमेंट को पुश किया लास्ट में तो हमारा डी क्यू बन जाएगा 7 4 5 6 8। सो आप साइज कैसे निकाल सकते हो? सिमिलर यू कैन यूज डी क्यू डॉट साइज। सो हमारा साइज ऑफ डी क्यू प्रिंट हो चुका है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द लाइक हाउ वी कैन रिमूव द डेटा फ्रॉम द डी क्यू। डिफरेंट मेथड्स की बात करते हैं तो डी क्यू प्रोवाइड्स यू अ मेथड कॉल्ड डी क्यू डॉट फ्रंट विच विल रिटर्न यू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द डी क्यू। Similarly, dq.back will return you the last element which is present in the dq. Similarly, जैसा कि मैंने बताया कि dq.popFront will remove the first element from the front and dq.popBack will remove the last element from the dq. देखते हैं कोड की तरफ। तो अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जो हमारा dq था सबसे लास्ट में दिस वाज 7 4 5 6 8। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है 7 4 5 6 8 और मैंने डी क्यू डॉट फ्रंट को प्रिंट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट फ्रंट एलिमेंट ऑफ द डी क्यू इज 7 जो कि हमारा 7 है। नाउ व्हाट वी डिड, वी रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द डी क्यू। सो डी क्यू डॉट पॉप फ्रंट, सो इट विल रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट एंड हमारा डी क्यू अब इस तरीके का बच जाएगा 4 5 6 8। अब आप चाहोगे कि पहला एलिमेंट कौन है रिट्रीव करने का, तो इट विल रिटर्न यू द न्यू फ्रंट एलिमेंट। सिमिलर इन केस ऑफ बैक, बैक विल रिटर्न यू द लास्ट एलिमेंट एंड पॉप बैक विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट एंड अगेन डी क्यू डॉट बैक विल गिव यू द न्यू लास्ट एलिमेंट। अब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि हाउ यू कैन प्रिंट और एक्सेस द डेटा ऑफ द डी क्यू। यू कैन आइदर यूज पॉप फ्रंट और पॉप बैक, इट्स अपॉन यू। सो स्टैक एंड क्यू के सिमिलरली हम डी क्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट STL। आज के लिए बस इतना ही। आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर लो हर एक टॉपिक पे जितने भी आज हमने कवर किए। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस विल गिव यू द मोर कॉन्फिडेंस एज कम्पेयर टू जस्ट वॉचिंग द वीडियो। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, डू हिट द लाइक बटन और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। अगर आप कुछ नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो लाइक लिस्ट्स, मल्टी मैप्स, अनऑर्डर मल्टी मैप्स, तो आप उन टॉपिक्स के बारे में भी पढ़ सकते हो। I will be attaching all the code which I have done in the entire video in the description section. So अगर आपको कोड्स चाहिए जो मैंने इस वीडियो में करी है, so you can get it through the link attached in the description. So आज के लिए बस इतना ही। Keep enjoying your coding journey. जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।